Good morning, students. Hope everyone is doing well. So here today's video I am dedicating it for all the students who have passed their class 10 with the flying colors. Actually, I had an important message very close to my heart that I wanted to share with you all. This message is going to make a huge difference in your careers, in your life. You could figure out what exactly I wanted to share with you all by looking at this title on your screens. Are you building your career? I'm addressing it to you. Are you building your career or breaking it without realizing? Here, realization is very essential. Now that you all have stepped out of your familiar hallways of school and entered into an exciting world of college, right? So everybody is very excited to start their new journeys. So I have a question for you all. Okay, what exactly the excitement that you have is for? क्या आपका excitement किस लिए है? क्या आपने एक्साइटमेंट के बारे में सोचा है कि मेरा एक्साइटमेंट किस लिए? मैं बताऊं आपको, आपका एक्साइटमेंट है कि मैं यहाँ पे नए नए फ्रेंड्स बनाऊंगा, राइट? मैं उनसे फिजिकली मिलूंगा, मैं उनके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहूंगा, isn't it? I'm going to have new dresses, there are no dress codes, no restrictions, right? I'm going to have new accessories. मेरे पास हो सकता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं हैंग आउट करूंगा, कॉलेज बंक करूंगा, वहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा. But remember, you have to do it. Please do it, but remember, don't get deviated from your path. Remember कि the choice of friends, आप जो friends को choose करने वाले हो, the choice of friends is going to make a huge difference on your personality and on your careers. क्योंकि आपको friend choose करना है, लेकिन कैसे friends आपको choose करना है? The friends who inspire you, the friends who are focused, the friends who are serious about the studies, the friends who are consistent in their efforts, right? The friends who have their own plans and goals for their lives. Why ऐसे friends को आपको choose करना है? क्योंकि company of such friends, when you are surrounded by them, that keeps you motivated all the time, whether it's your tough time, good time, bad time, they are going to help you out. तो आप जो दोस्त को चुनने वाले हो, नहीं, आप obviously you are going to make new friendships, right? So आप अपने से बेहतर वाले दोस्त को सोचो, ऐसे दोस्त को आप तलाश करो जो सीरियस है, जो लाइफ को लेके सीरियस है. बिकॉज कि आई एम सीरियसली स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु हैव रूइंड देयर करियर्स. मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो गिफ्टेड, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खराब कर ली है ये फ्रेंड्स के चक्कर में. आपको फ्रेंडशिप करना है, बट ऐसे फ्रेंड्स जिससे आप मोटिवेट हो, जिससे आप इंस्पायर हो, जो आपको अपने पाथ पे गाइड करे, आपको सपोर्ट करे. ओके, नॉट द वंस हु डिस्ट्रैक्ट यू. फाइन. देखिए, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ड्रेसेस. आई हैव एन क्वेश्चन टू आस्क यू. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, हैव यू सीन स्टीव जॉब्स? आई मीन, कहीं पे आपने स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू देखा, या फिर मार्क जुकरबर्ग का इंटरव्यू देखा, या फिर इनको आपने कहीं पे देखा? आई मीन लाइक नॉट इन योर रियल लाइफ, के कोई वीडियो में, कहीं न्यूज़ में, कहीं देखा? हैव यू सीन? यस, यू माइट हैव. हु इज स्टीव जॉब्स? द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, जो आईफोन आप यूज करते हो, या फिर यू एम टू हैव योर ओन. या फिर मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा कंपनी का को फाउंडर और फाउंडर एंड सीईओ है. सो हैव यू सीन देम? सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या उनके ड्रेस को देखा? राइट, ड्रेस इन द सेंस, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रेस इन पर्टिकुलर, if many of you who have seen Steve Jobs, you will find his pictures. Actually, he has passed away. You will find him in the turtleneck, black turtleneck with the blue jeans. और आप मार्क जुकरबर्ग को अगर आप देखते हो तो with few exceptions, 99.9% he wears a grey color t-shirt, or these days he is wearing a blue color t-shirt with a jeans. ओके, क्या इनके पास पैसा नहीं है? बहुत पैसा है. ओके, दे आर मल्टी बिलियनर, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में ये लोग आते हैं, इनके पास बहुत पैसा है. बट व्हाई डू दे हैड मेड देयर ओन ड्रेस कोड? ये अपना ड्रेस कोड क्यों बनाए? अब सवाल होता है कि ये रोजाना एक कलर का, एक रंग का ही क्यों कपड़ा पहनते हैं? द आंसर इज दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर क्रिएटिव एनर्जी. उनका जो क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव पोटेंशियल है, दे डोंट वांट टू मेक ओनली ऑन मेकिंग डिसीजंस. दे डोंट वांट टू वेस्ट इट ऑन मेकिंग डिसीजंस कि भाई आज क्या पहनना है, पिछली बार मैंने ये पहना था, लोग बोलेंगे कि ये कलर इन्होंने पहले भी पहना है, फिर नेक्स्ट मैचिंग कलर कौन सा लूं, राइट? सो ये सब चीजें इनको वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम. इनका फोकस इज समथिंग डिफरेंट. दे वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड, राइट? सो इनसे आप टेक अवे ले लीजिए. ऑफ कोर्स आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम ए सेंट, कोई साधु बन जाओ, इनकी तरह बस दो कपड़े एक कपड़े में रहो. यानी डोंट मेक इट एज योर प्रायोरिटी. वो आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, वो सेकेंडरी है. ओके, आपकी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए. तो मैं इसके लिए आपसे एक सवाल करता हूं कि आप मुझे बताइए कि व्हाई डिड यू जॉइन अ कॉलेज?
कॉलेज? Why did you opted for MPC, BPC, CEC? आपने जो कुछ भी मैथ्स लिया, लाइफ साइंसेस लिया या अकाउंट्स लिया, जो भी सब्जेक्ट आपने कॉमर्स लिया, क्यों चूज किया? Why? Okay, remember, आपकी स्कूलिंग लाइफ जो थी दैट वाज अ फाउंडेशन. नाउ आपने वो फाउंडेशन कंप्लीट किया, अब आप एक प्रोफेशन की तरफ जाने वाले हो. ओके, डिड यू मेक अप योर गोल सेटिंग? आपने बताइए, आप मुझे बताइए कि आपने अपनी गोल सेटिंग की कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ. आई मीन, आपने सोचा कभी कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं अपने आप को कहाँ देखने वाला हूँ, नेक्स्ट 6 इयर्स में मैं कहाँ देखने वाला हूँ, नेक्स्ट 7 इयर्स में मैं कहाँ रहूँगा? मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा या फिर मैं लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा? कुछ भी एक प्रोफेशनल आपको सोचना है, आपको गोल सेट करना है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं क्या क्या करने वाला हूँ. ओके, लाइक कि मैं प्लेन उड़ाने वाला हूँ या फिर मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला हूँ या फिर मैं लैब में साइंटिस्ट रहूँगा, क्या रहूँगा? मैं बिजनेसमैन रहूँगा. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू अ रिवर्स प्लानिंग. ओके, मेरे को वहाँ रीच होना है तो मुझे यहाँ क्या करना है? देखो, आपने जो कॉलेज आप ज्वाइन किया, इसको क्या कहते हैं आप बताइए, टेल मी क्विकली. आप इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट, राइट? सो ये इंटरमीडिएट, द वर्ड इंटर इन द सेंस इंटर यानी बीच में. किसके बीच में? आपकी स्कूल के बीच में और आपके प्रोफेशन के बीच में. ओके, सो फार वॉट एवर यू हैव डन इन योर स्कूलिंग चल गया वो, लेकिन अभी आपका ये स्टेज विल टेक यू टू द प्रोफेशनल योर करियर्स. आपके पाथ ओके जो चूज करने वाले वो यहाँ पे डिसाइड होने वाला है, राइट? दिस इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये 2 इयर्स आपके नेक्स्ट 35 इयर्स को आसान बना देंगे. इफ दिस 2 इयर्स, इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ यू आर सीरियस, नेक्स्ट 35 इयर्स यू विल एंजॉय ऑल दैट यू वांट. यहाँ पे मैंने जो आपको गिनवाया है, बताया है कि इनको थोड़ा सा अगर आप सैक्रिफाइस करते हो, जब आपके पास कुछ पैसा आ जाता है, आपकी रेस्पेक्ट यानी कि यू बिल्ड your identity in your society, so everything comes to you. Just work hard, just sacrifice for these 2 years and think of a big, I mean like dream big. बड़ा सोचो, अभी छोटा सोचो मत कि मैं 2 साल लाइफ को एंजॉय करता हूँ. बिल्कुल, आप 35 इयर्स का सोचो. 35 इयर्स एंजॉय करना है आपको. नेक्स्ट आई मीन प्रोफेशनल आपकी जो लाइफ होगी, जहाँ पे आपका वर्किंग एज होगा, उसके बारे में सोचो. नॉट जस्ट वेस्टिंग योर टाइम फॉर द 2 इयर्स अगर ऐसे वैसे चीज़ों से, क्योंकि आप फाउंडेशन से प्रोफेशन की ओर जा रहे हो. आपका ये जो 2 इयर्स है, यहाँ पे आपकी स्कूलिंग खत्म होके अपनी प्रोफेशनल लाइफ की आप बुनियाद यहाँ से रखने वाले हो, राइट? सो दिस इज द स्टेज वेयर यू डिस्कवर योर सेल्फ कि मैं कौन हूँ, व्हाट आर माई पोटेंशियल्स, व्हाट आर माई एबिलिटीज, मेरे स्किल्स क्या है, राइट? और फ्यूचर में क्या चाहिए? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लर्निंग फ्रॉम फ्यूचर. आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, कि इट इज चेंजिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्योंकि अभी आप 5 से 6 साल में आप एक प्रोफेशन में उतरोगे, तब तक फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, क्या स्किल्स मार्केट को चाहिए, राइट? मार्केट नीड्स सर्टेन स्किल्स, राइट? और आप क्या एक्वायर कर रहे हो, आपके पास क्या है, आपको क्या करना है, यानी कितना सीखना है, ये चीज़ों के ऊपर आप सोचो. ना कि जस्ट रोमिंग अराउंड, हैंगिंग आउट, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ये सब मत सोचो, ठीक है? आप बड़ा सोचो कि भाई आपको जो बहुत कुछ यहाँ पे सीखना है. यू हैव टू लर्न, नॉट, एंड रिमेंबर, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द पीपल दैट इज योर फ्रेंड्स, योर लेक्चरर्स, एवरीबडी. हर किसी से आपको सीखना है. लाइफ के लेसन्स आपको लेना है. सिर्फ आपको बुक से नहीं सीखना है, आपको अपनी मिस्टेक से सीखना है. आपको हर अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है. अपने हर एक्सपीरियंस से आपको सीखना है, ठीक है? अब गोइंग फॉरवर्ड, अब देखिए, जैसे कि अगर आपने मैथ्स चूज किया या फिर आपने लाइफ साइंसेस या फिर आपने कॉमर्स अकाउंट चूज किया, जहां पे आप एवरी डे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एवरी एवर दैट यू आर पुटिंग इन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, और टू डिकोड द ह्यूमन बॉडी और टू बैलेंस एन अकाउंट शीट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर बिल्डिंग योर करियर. हर एक मिनट आप जो इसमें लगा रहे हो, इससे आपका करियर बिल्ड हो रहा है. Okay, keep that in mind. So be serious, be focused, be disciplined, be consistent in your efforts. आप बड़ा सोचो, आप सोचो कि आपकी आइडेंटिटी आपको कैसे बनाना है, समाज में लोग आपको पहचानना है. आप अपनी आइडेंटिटी इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की सोच रखो, ताकि आप एटलीस्ट नेशनल लेवल पे, यानी आप IIT कर पाओगे, राइट? या फिर NIT करोगे, नीट में आपको रैंक आएगा, एम्स में कहीं ना कहीं नेशनल, एटलीस्ट स्टेट लेवल पे तो आपको टॉप करना है. Keep that and remember कि सक्सेस किसके लिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, for whom is the success? Do you think success is only for the toppers? क्या सिर्फ टॉपर्स ही सक्सीड होते हैं? Never.
okay, everybody, but it's not just the toppers नहीं, बल्कि toppers, I'm not against the toppers, everyone can succeed, okay. आपका attitude क्या होना चाहिए कि never ever give up, okay. So I mean it's not just the toppers who succeed, it is the ones who never give up. You just have to start, you have already started it, you had to be फोकस्ड. आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो, अपने पाथ से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, राइट. अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहना है और सक्सेस आपके कदमों में होगी.